Hello everyone. So today in this video we will be discussing about a value fashion retail company called V2 Limited. हम लोगों ने इसका बिजनेस अपडेट्स डिस्कस किया था. सो टुडे वी विल डिस्कस द कंप्लीट रिजल्ट्स एंड द कॉन एनालिसिस. वी विल सी दैट मैनेजमेंट ने कॉल में क्या बोला है. सो कमेंट्री क्या दी है, गाइडेंस क्या दिया है. सो एंड एट द एंड वी विल ऑल्सो सी द वैल्यूएशन पार्ट की वैल्यूएशन में क्या है, क्या डील अच्छा है कि ख़राब है. वी विल सी दैट ऑल्सो. सो या सो V2 Limited वी ऑल नो दैट इज़ अ वैल्यू फैशन रिटेल अपरेल कंपनी. और FY25 हम लोगों ने ट्रैक किया था पूरा, एंड कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए. टॉप लाइन was growing at a lot of around 50-60% every quarter almost. And now the V2 is the leader in this Apple sector. ट्रेंड का जैसे जैसे ग्रोथ कम आते गया, but V2 started growing at a faster pace than trend also, and has even beaten trend in this case. But our job is to track the companies, whether it's Trend or V2 or even Style Bazaar Retail Limited also, or Vishal Mega Mart also. Our job is to track the businesses and see that कौन सा कंपनी अच्छा लग रहा है, कौन सा अपने अच्छी लग रही है for investments and all. So today we will discuss about V2 Limited. एक ड्रॉबैक दे देता हूँ कि पहले क्या हुआ था, कि हम लोगों ने लास्ट ईयर देखा था कि Q1FY25 में ईद था. But in this time in calendar year 2025 में अगर हम देखिए, the Eid got preponed to Q4FY25 में ईद हुआ, which was in the month of March. So due to which जो सारा शॉपिंग वगैरह जो था वो जनवरी फरवरी में हुआ. In this quarter, the first quarter of FY26, there was no festivals, so there was a bit of dip seen in the month of April, but it got normalized in the month of May and June, जहाँ पे डबल डिजिट ग्रोथ भी हुआ था कंपनी का. But then in the month of April there was some dip as there was no festivals in this quarter. But Q4FY25 was phenomenal for V2 Retail Limited as Eid bhi tha, so festival shoppings and everything the company got benefited. But in Q1FY26 there was no festivals and all, but still अगर आप numbers देखोगे तो number has been phenomenal. The top line अगर company का हम देखें, top line grew around 51-52% on YOY basis, which is of around 632 crores in Q1FY26. अगर last year same quarter से compare करें, it is around 415 crores का revenue हुआ था लास्ट ईयर. सो अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर Q1FY25 was really good for V2 Limited. This time Q4FY25 was also good, and even Q1FY26 is also again good. क्वार्टरली बेसिस पे भी अगर थोड़ा देखें तो क्वार्टरली बेसिस पे भी इवन द ग्रोथ इज़ अमेजिंग. 25% का टॉप लाइन ग्रोथ है ऑन क्वार्टरली बेसिस ऑल्सो. तो नॉर्मली हम लोग क्वार्टरली चेक नहीं करते, बट देन जस्ट एक रिव्यू भी करें तो क्वार्टरली बेसिस पे 25% का ग्रोथ, विच इज़ अगेन अ फिनोमिनल कि आप अपने बेस्ट क्वार्टर जो है साल का FY25 का, उसको भी आपने बीट किया है. नाउ यू आर स्टैंडिंग एट अराउंड top line growth of 51% on YOY basis and 25% on quarterly basis. So this is again a very good sign that the demand is there, and the company has been executing it very well. अगर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देखते हैं इनके इनका जो अप्रैल सेक्टर है, अप्रैल का जो सेगमेंट है उसमें वो मेंस, लेडीज़, किड्स के ये clothes and everything they sell, and they have a lifestyle section as well. So अगर हम लोग मेन सेक्शन देखें, they have contributed around 41%. Ladies section is around contributed around 29%. Kids का जो segment है that has contributed around 24%, and lifestyle is around 6%. So these are the revenue contributions which has contributed in the top line growth of V2 Limited. अगर हम लोग EBITDA देखते हैं, EBITDA can grew around 57% on YOY basis. It is of around 87 crore in this quarter. Last year same quarter में it was around 55 crore. So EBITDA also grew at a robust pace. Margins अगर देखते हैं, EBITDA margins is also good. EBITDA margins is around 13.8% in this quarter. Last year quarter it was around 13.4%. So again margins expand हुए हैं. EBITDA has been growing very well. Even इनका PAT का भी profitability भी देखते हैं तो PAT also grew around 51%. So neck to neck on the top line अगर देखें तो PAT grew 51% का PAT हुआ है. इस बार PAT amount is around 24.7 crores. Last year it was around 16.3 crores. So see, the financials has been really good. Company has been executing very well. Plus margin expansion हो रहा है. And that too on a lean quarter. ऐसा performance है जब Q1 में there was no festivals, nothing was there, but still the performance has been really good.
अगर इनके ऑपरेशनल मैट्रिक्स में देखते हैं, ऑपरेशनल मैट्रिक्स अगर मैं बोलूँ जहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ आता है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी आता है, एएसपी भी हम लोग देखते हैं कि एवरेज सेलिंग प्राइस कितना ग्रो हुआ है, प्लस सेल्स पर स्क्वायर फीट इवन दैट हाउ मच इज द सेल्स पर स्क्वायर फीट हुआ है, वो भी देखते हैं। तो अगर हम लोग फर्स्ट ऑपरेशनल मैट्रिक्स देखें, दैट्स वॉल्यूम ग्रोथ हैज़ बीन रोबस्ट, इट इज़ अराउंड 50% का वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने पोस्ट किया इन Q1FY26 में। अगर एवरेज सेलिंग प्राइस देखते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अप बाई 16%, 16% से आपको एवरेज सेलिंग प्राइस ऑल्सो। तो आपको लगेगा कि अगर एवरेज सेलिंग प्राइस 16% से हुआ है, वॉल्यूम ग्रोथ इज़ अराउंड 50%, बट अंडरलाइन जो टॉप लाइन ग्रोथ है इज़ जस्ट अराउंड 51-52%। तो ऐसा क्यों है? सो इसलिए बिकॉज कंपनी ने प्रोडक्ट मिक्स चेंज हुआ है कंपनी में। कंपनी इज़ रिड्यूसिंग देयर जनरल मर्चेंडाइज सेगमेंट। वहाँ से वो जनरल मर्चेंडाइज सेगमेंट्स का अमाउंट इज़ वेरी लेस, अराउंड 30-40 रुपीज़ का पर क्वांटिटी होता है या पर प्रोडक्ट होता है। सो दैट्स वाई दे आर रिड्यूसिंग दैट सेगमेंट, इसीलिए वो भी इंक्लूडेड है एवरेज सेलिंग प्राइस, जिसकी वजह से एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ गया इस बार इस क्वार्टर में, जिसकी वजह से आपको दिख रहा है कि 16% एवरेज सेलिंग प्राइस है, वॉल्यूम ग्रोथ इज अराउंड 50%, बट टॉप लाइन ग्रोथ इज अराउंड 52%। इसीलिए बिकॉज कंपनी देयर इज़ अ चेंज इन द प्रोडक्ट मिक्स, कंपनी इज़ रिड्यूसिंग द जनरल मर्चेंडाइज सेगमेंट, एंड जो उनका जो मेन अप्रैल सेगमेंट है उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। सो दिस इज़ वाई थोड़ा सा दिखेगा इनकन्सिस्टेंसी, बट देन दिस इज़ द रीज़न कि वो जो अपना प्रोडक्ट मिक्स चेंज कर रहे हैं, जनरल मर्चेंडाइज में जो सेगमेंट है वो रिड्यूस कर रहे हैं। सो दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग इज़ द सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इस क्वार्टर में 5% था, बिकॉज अप्रैल में डिप आया था, देयर वाज नॉट मच इनफ फुटफॉल्स ड्यू टू फेस्टिवल सीजन नहीं था इसलिए। बट देन इन द मे एंड जून देयर हैज़ बीन अ डबल डिजिट ग्रोथ इन मे एंड जून. May and June, they have seen higher footfalls and people have come there and they have done shopping. I would say they have done shopping when it comes to in the month of May and June. अगर ये नॉर्मलाइज्ड भी होता, अगर ये नॉर्मलाइज होता जहाँ पे फेस्टिवल्स वगैरह नहीं होते, फेस्टिवल्स वगैरह होते, और लास्ट ईयर जैसे Q1 हुआ था, Q1FY में SSG वॉज हायर ड्यू टू फेस्टिवल ऑफ ईद, बट दिस टाइम ऐसा नहीं था। अगर वो नॉर्मलाइज होता तो नॉर्मलाइज SSG वुड हैव बीन अराउंड 10%, जो उनका गाइडेंस भी होता है नॉर्मली V2 के मैनेजमेंट का, कि वो लोग को अराउंड 8-10% का SSG रखना है। एंड सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जितना हाई होगा उतना बेटर होगा, एंड इट इंडिकेट्स दैट कि जो ओल्ड स्टोर्स है उसमें कितना ग्रोथ हो रहा है। न्यू स्टोर्स में तो हो ही रहा है, बट देन ओल्ड स्टोर्स कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दैट्स व्हाट इट इंडिकेट्स सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। थर्ड मैट्रिक्स लेके थर्ड या फोर्थ मैट्रिक्स अगर हम बोलते हैं, सेल्स पर स्क्वायर फीट। सेल्स पर स्क्वायर फीट में थोड़ा सा डिप देखा गया है। Sales in this quarter, Q1FY26 में it is around 960 rupees sales per square feet. Last year in the same quarter it was around 1061, and management का कहना है मीडियम टर्म में they want to reach around 1200 sales per square feet, rupees 1200 sales per square feet, and लॉन्ग टर्म इज़ अराउंड 1500 रुपीज़ सेल्स पर स्क्वायर फीट। सो ये जो डिप है, ये डिप क्यों? अगर आप देखो कि कंपनी हैज़ बिन एग्रेसिवली एडिंग अप स्टोर्स। लास्ट ईयर अगर आप देखते हो FY25 में दे हैव एडेड अराउंड 74 to 75 स्टोर्स फुल ईयर में, एंड अगर दिस क्वार्टर ऑल्सो यू सी दे हैव ओपन अराउंड 28 स्टोर्स, सो मोर देन नियर अबाउट अराउंड देखोगे तो 100 स्टोर्स दे हैव ओपन इन पास्ट 12 to 15 मंथ्स। सो जो न्यूअर स्टोर्स है उसका जो फुटफॉल है थोड़ा कम होगा कंपेयर टू ओल्ड स्टोर, बिकॉज ओल्ड स्टोर में आप गए हो, वहाँ पे वो एक्सपीरियंस लिया है टू गो इन टू अ स्टोर एंड बाई क्लोथ्स एट दैट टू हैव डिफरेंट साइजेस एंड डिफरेंट क्वान्टिटीज़, एंड अपने हिसाब से चेक का क्वालिटी चेक एंड एवरीथिंग करके आपने क्लोथ्स लिया है। वो एक एसी इन्वायरमेंट को एक्सपीरियंस किया है स्टोर्स में जाके, सो जिसकी वजह से फुटफॉल्स ओल्ड स्टोर्स में ज़्यादा होगा। व्हेन इट कम्स टू न्यू स्टोर्स थोड़ा सा कम होगा, बट देन वो इंक्रीज़ डेफिनेटली होगा एट द गोइंग अहेड, बट ये उतना कुछ फिगर करने का बात नहीं है। आई वुड से दैट देयर इज़ नो पैनिक इन इट, कि अगर थोड़ा सा सेल्स पर स्क्वायर फीट थोड़ा कम हुआ है दैट ₹960। अगर यही हम लोग अगर Q1FY26 का ओल्ड स्टोर का देखते हैं कि सेल्स पर स्क्वायर फीट कितना है, इट इज़ अराउंड ₹1100। सो
न्यू स्टोर्स अगर इंक्लूडिंग देखते हैं तो कॉन्सोलिडेटेड में इट इज़ अराउंड 960, बट अगर सिर्फ ओल्ड स्टोर का देखते इट इज़ अराउंड ₹1100 सेल्स पर स्क्वायर फीट. सो इट्स अ गुड नंबर, आई वुड से दैट, क्योंकि अगर नॉ कॉमन सेंस भी है कि इतने स्टोर्स ऐड कर रहे हैं तो थोड़ा सा थोड़ा सा फुटफॉल न्यू स्टोर्स में कम होगा कंपेयर टू ओल्ड स्टोर्स में. सो दैट्स द रीज़न दैट सेल्स पर स्क्वायर फीट थोड़ा कम हुआ है. अगर आप इनके एडिशन ऑफ स्टोर्स भी देखते हैं, दे हैव एडेड अराउंड 28 स्टोर्स. मैनेजमेंट ने Q4FY25 में गाइड किया था अराउंड 100 स्टोर्स एडिशन इन FY26. अराउंड 28 स्टोर्स उन्होंने Q1FY26 में ऐड करी है. उन्होंने एक स्टोर क्लोज किया एज इट वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेल, जिसकी वजह से उन्होंने एक स्टोर क्लोज किया. बट Q1FY26 में दे हैव अराउंड 28 स्टोर्स. टोटल स्टोर काउंट अगर आप देखते हैं तो 216 स्टोर काउंट हो चुका है. और मैनेजमेंट ने कॉनकॉल पे ये भी बोला था कि दे हैव एडेड अराउंड 9 स्टोर्स इन Q2 ऑलरेडी इन द मंथ ऑफ जुलाई, टिल द मंथ ऑफ जुलाई और फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त उन्होंने अराउंड 9 स्टोर्स और ऐड कर लिए. सो विच इज़ अ गुड साइन कि मैनेजमेंट जो बोल रही है वो कर रही है. वॉकिंग द टॉक मैनेजमेंट है. एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि जो वो लोग जो गाइड करते हैं दे अचीव इट, दे समटाइम्स दे इवन ओवर अचीव इट ऑल्सो. दे टोल्ड दैट कि पैट पॉजिटिव होंगे ऑल क्वार्टर्स में. सो Q1 अगर देखेंगे तो दे आर ऑलरेडी पैट पॉजिटिव. सो एंड प्लस Q2 Q3 आना बाकी है जहाँ पे फेस्टिवल सीजन विल गोइंग टू इंक्रीज डेफिनेटली. तो वहाँ पे भी वो लोग पैट पॉजिटिव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. एंड एग्जीक्यूशन इतना अच्छा है जब कंपनी का, तो पैट पॉजिटिव दे विल बी पैट पॉजिटिव. एंड मैनेजमेंट कॉल अगर आप सुनोगे उनका तो कॉन्फिडेंस इट सीम्स दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट ऑल्सो. ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखता बट कॉन्फिडेंट दिखता है बिकॉज दे नो द डिमांड सिनेरियो ऑफ इट, द मैक्रोस क्या है और स्टोर वाइज एग्जीक्यूशन कैसा हो रहा है, जिसकी वजह से दे नो दैट कि हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं. और ये जो गाइडेंस है वी कैन अचीव वी कैन डेफिनेटली अचीव बाय द एंड ऑफ FY26. So that's what it is. Now if you look at the full price sale contribution, around 92% sales contribution MRP बेचा उन्होंने, which is even good. अगर क्लीन क्वार्टर है Q1 जहाँ पे फेस्टिवल्स नहीं है कुछ भी नहीं है, बट देन ऑल्सो दे हैव सोल्ड मैक्सिमम 92% ऑफ द सेल्स. 92% ऑफ द प्रोडक्ट्स उन्हें MRP में बेचा है, नो डिस्काउंट्स नथिंग. सो अगेन इट्स अ वेरी गुड साइन कि डिमांड कैसी है एंड वो ट्रस्ट कैसा है, वो क्रेडिबिलिटी कैसे कंपनी ने बनाई है अमंग इन द कस्टमर्स कि वो लोग MRP में दे वांट टू बाय. अगर MRP में भी है दे वांट टू गो अहेड एंड बाय. So that's what V2 is all about, execution and that trust what they have built over the years. Now if I look at the balance sheet items as also कि balance sheet में क्या हुआ है. अगर हम लोग इन्वेंटरी डेज देखते हैं, अर्लियर कंपनी का इन्वेंटरी डेज बहुत ज़्यादा होता था, 131 डेज होते थे. बट नाउ लास्ट ईयर FY25 में इट केम डाउन टू 108. और हमने देखा भी था कि वो सस्टेनेबल है बिकॉज नाउ द वेंडर्स को वो नॉलेज पास किया गया है कि क्या कैसे प्रोडक्ट्स चाहिए, कैसे डिज़ाइन चाहिए, क्वालिटी कैसा होना चाहिए. नाउ दे आर वेरी मच नॉलेज, वो ट्रेनिंग दिया गया है जिसकी वजह से नाउ V2 इंटरमीडिएट को जो स्टॉक पे मिलता है वो बहुत जल्दी मिलता है. एंड द मोमेंट दे गेट द स्टॉक वो अपने सोर्स पे लगा देते हैं. नाउ इवन द कस्टमर्स ऑल्सो हैप्पी कि जितना न्यू स्टॉक्स आएगा दे आर गोइंग टू बाय एंड न्यू ट्रेंड्स वगैरह वो लोग बाई कर सकते हैं. सो इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो 108 डेज था FY25 में इन्वेंटरी का. अभी करेंटली इट इज़ अराउंड एट 93 इन Q1 FY26. सो इट्स अगेन अ वेरी गुड साइन फॉर V2 इंडिया लिमिटेड. नेट वर्किंग कैपिटल डेज भी देखते हैं, इट्स बिन कम डाउन. लास्ट ईयर FY25 में इट वॉज अराउंड 37 डेज़ का था. दिस टाइम इन दिस क्वार्टर इट इज़ ऑफ अराउंड 34 डेज. सो अगेन दिस इज़ अ वेरी गुड साइन. जो हम लोग देखते हैं V2 इंडिया में कि नेटवर्किंग कैपिटल डेज कम हो रहा है, इन्वेंटरी डेज इज़ ऑल्सो रिड्यूसिंग. एंड प्लस इनका जो ROE है विच इज़ रिटर्न ऑन इक्विटी, द एग्जीक्यूशन पार्ट जो है पैट ऑपरेटिंग लेवरेज उनको मिलता है. Even the PAT growth is around 50 plus for V2. So ROE is also moving in the upward trend. Few years back V2 में PAT पॉजिटिव नहीं होता था, प्रॉफिटेबल नहीं था, तब उनका ROE जो होता था वो होता था अराउंड 10% इन FY24. But the moment they have start becoming the growth has come and PAT positive होना चालू हुआ है. Now the ROE in FY25 जो था वो था 23%.
और Q1FY26 में देयर ROE इज़ अराउंड 27%. सो अगर आप देखोगे तो एक अपवर्ड ट्रेंड है कंपनी का इन ROE, जहाँ पे 10% वॉज देयर इन FY24. In FY25 it is around 23%, and now ending they have ended this quarter Q1 at 27%. So it's a very good sign. And execution जहाँ पे अच्छा हो वहाँ पे all these factors will fall into its place, I would say that. So this is about the financials. कंपनी के जो financials है अच्छे financials है, I would say that कि growth बहुत अच्छा है. And so हमने डिस्कस भी किया था, I will again discuss that the growth major growth drivers क्या है कि ये apparel sector इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, डिमांड इतना ज़्यादा है. The first is the shift जो हो रहा है from unorganized sector to the organized sector, जहाँ पे लोग जहाँ पे लोग अब स्टोर्स में जाना चाहते हैं, एक एसी इन्वायरमेंट में जाना चाहते हैं, तो एक्सपीरियंस करना चाहिए, स्पेशली इन टायर 2 टायर 3 सिटीज़. नॉट जस्ट इन टायर 1 में तो है ही डेफिनेटली बहुत है, बट इन टायर 2 टायर 3 सिटीज़ जहाँ पे V2 रिटेल फोकस करता है, तो वहाँ पे वो लोग जाना चाहते हैं और वो लोग वहाँ से ख़रीदना चाहते हैं कपड़े स्टोर्स के, rather than buying from streets or local shops. They want to go for a brand like V2 Retail Limited, वहाँ से store wise, and that too at affordable prices as well. So एक affordability का भी किस्सा आ जाता है कि जहाँ पे वो जिसकी वजह से वो लोग जाएंगे, प्लस AC इन्वायरमेंट है, प्लस डिस्पोजेबल इनकम भी है. वी वुड से दैट कि एक डिस्पोजेबल इनकम भी है जहाँ पे टैक्सेस हम नहीं लगेंगे अप टू ₹12 लाख से, जो 1.5 लाख का जो फ़ायदा हुआ है कंज्यूमर्स को. सो उनका इनकम बढ़ गया है. सो दे हैव लॉट्स ऑफ कैश एंड दे कैन डेफिनेटली गो फॉर शॉपिंग, and they definitely go for shopping and buy clothes from V2 Retail Limited, that too especially in tier 2 tier 3 cities. And also there is one more thing कि जहाँ पे आप एसी इन्वायरमेंट में अलग तरीका होता है. पहले होता था कि हम लोग जो शॉपिंग करते थे वो ओकेजनल वेयर में करते थे, बट नाउ द ट्रेंड हैज़ चेंज. एवरी टाइम देर आर सम न्यू डिज़ाइंस हैज़ बीन कमिंग अप बाय दिस कंपनीज, एंड न्यू डिज़ाइंस जैसे आते हैं द जेंसीज एंड एवरीथिंग, दे वांट टू ट्राई दोज न्यू डिज़ाइंस एंड टू बाई एंड टू स्टे इन द ट्रेंड. सो दिस इज़ ऑल्सो अ रीज़न दैट कि आप ओकेजन्स नहीं देखे जाते व्हेन इट कम्स टू बाइंग. दे कैन डिमांड अगर अच्छा है तो वो लोग 365 डेज डेफिनेटली दे आर, कोई ना कोई तो जाएगा ही जाएगा टू बाई टू गो फॉर शॉपिंग फॉर any occasions. Not just this time it is Diwali or Durga Puja is there, not just this occasion, for any occasion they can go because it is at affordable prices, casual wears and fashion wears है. So जिसकी वजह से एक फ़ायदा हो जाता है, लाइक कंपनीज लाइक V2 Retail Limited, ट्रेंड हो गया जिन्होंने Zudio निकाला, एंड Zudio हैज़ paved this path for this kind of companies also. स्टाइल बाज़ार है, ट्रेंड है, विशाल मेगा मार्ट है, so they get that leverage also. So this is the macro thing or the major drivers जो हम देख सकते हैं कि due to which there is so much of demand, and these companies are not affected by any macro tailwinds and all. Now second thing, so we'll discuss the Concall of V2 Retail Limited. Concall, I would suggest that you guys should read the Concall. It's around 22 pages का Concall है, but then definitely you should read it. You will understand more that कि management कितना clarity से explain करता है, that they know that where they are down, where they have to what they have said in the previous Concall and what they are saying it now. So एंड प्लस जितनी क्लैरिटी से बात करते हैं और प्लस जो गाइडेंस भी देते हैं और उनका जो एग्जीक्यूशन भी होता है. सो दिस ऑल थिंग्स मैटर्स, एंड व्हेन यू रीड द कॉल और यू लिसन द कॉल, एक मैनेजमेंट टोन भी पता चल जाता है कि वो किस टोन से बात कर रहा है, क्या उनका पहले था और अभी कैसा टोन है. यू कैन कंपेयर दैट ऑल्सो, एंड इससे आप कन्विक्शन बिल्ड करते हो. आई वुड से दैट एक कन्विक्शन बिल्ड होता है कि हाँ भाई, हम लोग जो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर करना चाहते भी है, तो वहाँ पे मैनेजमेंट क्या बोल रही है, फिनेंशियल्स कैसे एंड मैक्रो टेलविंस कैसे सपोर्ट कर रहे हैं कंपनी को. सो दिस इज़ हाउ यू I would say that this is how you judge a company and invest in it. So though this is not a buy or sell recommendation, please do your own research on it. So yeah, so now carry on with the Concall. So management ने Q1FY Concall में बोला first thing कि they are be doing a QIP करने वाले ऑफ ₹400 करोड़ का. सो लास्ट क्वार्टर अगर आपने Q4FY25 का Concall पढ़ा होगा, they have clearly said that कि they will be adding around 100 stores in FY26 through internal accruals, और उनको QIP करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा when it comes to addition of 100 stores. But
बट नाउ व्हेन दे बट होता क्या है कि दे आर गोइंग टू ऐड मोर स्टोर्स. सो फॉर दैट दे हैव टू डू अ QIP. सो व्हाट दे हैव गाइडेड इज़ दैट कि मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि दे विल बी डूइंग अ QIP ऑफ ₹400 करोड़. सो किसी एनालिस्ट ने पूछा भी था कि 400 करोड़ का अगर आप QIP कर रहे हो तो आर यू गोइंग टू ऐड मोर स्टोर्स, आर यू गोइंग टू ऐड मोर स्टोर्स. सो मैनेजमेंट ने बोला या दे आर गोइंग टू ऐड मोर स्टोर्स. सो अगर आप Q1 में देखोगे दे हैव एडेड अराउंड 28 स्टोर्स. They are going to add more 100 stores in FY26. More 100 stores, which means that they are going to end FY26 with around 120 to 130 stores. So again, it's a good jump of expansion of stores. And management ने ये भी बोला कि in FY27 also they are going to add around 120 to 130 stores. So अगर आप देखोगे मैनेजमेंट एवरी टाइम गाइड करता है अराउंड 100 stores ऐड करने का in a year, in a financial year. This time what they are saying that they are going to add 120 to 130 stores in FY26 and FY27. So all over अगर आप देखोगे तो around 120 या 240 to around 260 stores they are 250 260 stores they are going to add in next 2 financial years. So that leverage they have got now कि जो QIP रेज कर रहे 400 करोड़ का, तो उससे वो अमाउंट जो है वो प्रोसीड्स जो होगा वो एक स्टोर एक्सपेंशन में जाएगा ऑफ द एडिशनल स्टोर्स ऑफ अराउंड 50 to 60 स्टोर्स जो ऐड करने वाले वो लोग इन नेक्स्ट 2 years. सो उसमें दैट अमाउंट विल बी गोइंग दैट एक्सपेंशन. और मैनेजमेंट ने बोला भी था कि अगर हम लोग को 100 स्टोर्स ऐड करना है सो दे वुड नीड अराउंड 250 करोड़ टू ओपन. 250 करोड़ का केपेक्स हमको करना ही पड़ेगा टू ऐड अराउंड 100 स्टोर्स इन ए ईयर. सो अगर आप 50-60 स्टोर्स को और ऐड करने वाले सो दे हैव टू डू मोर कैपेक्स, क्योंकि 100 स्टोर्स के लिए तो इंटरनल अप्रूवल से हो जाएगा. बट देन जब एक्स्ट्रा स्टोर्स अगर आप ऐड करते हो अराउंड 50-60 तो उसके लिए आपको QIP रेज करना पड़ेगा क्योंकि मैनेजमेंट डेट में जाना नहीं चाहती है. सो दे विल डू अ स्टोर एक्सपेंशन. और स्टोर एक्सपेंशन का इकोनॉमिक यूनिट्स अगर आप देखते हो कि उनको जो एक स्टोर एक्सपेंड करना होता है उनके लिए एक ओपनिंग जो स्टोर एक्सपेंड करने का कॉस्ट होता है डेट इज़ अराउंड 2.3 to 2.5 करोड़ का एक स्टोर का कॉस्ट होता है. उसमें इंक्लूड क्या होता है, फर्स्ट होता है इन्वेंटरी. इन्वेंटरी उनको चाहिए अराउंड 1.3 to 1.4 करोड़ का एक स्टोर ओपन करने के लिए. और वो एक स्टोर ओपन करने का जो केपेक्स लगता है डेट इज़ ऑफ अराउंड 1.1 करोड़ और 1.2 करोड़. उनका कैपेक्स का अमाउंट है 1.1 to 1.2 करोड़ टू ओपन ए स्टोर. और उस स्टोर में इन्वेंटरी फिलअप करने के लिए उनको लगता है अराउंड 1.3 to 1.4 करोड़ एक्स्ट्रा. सो देखोगे तो अगर मोटा मोटी एक स्टोर ओपन करने के लिए फुल्ली वर्किंग स्टोर ओपन करने के लिए उनको लगेगा अराउंड 2.5 करोड़. 2.3 to 2.5 करोड़ का एक स्टोर एक्सपेंशन लगेगा. सो ये एक्सपेंशन के लिए अमाउंट कहाँ से आएगा, दैट्स अ QIP दे आर बी डूइंग ऑफ अराउंड 400 करोड़ जो 50 to 60 एडिशनल स्टोर एक्सपेंड करने वाले. सेकेंड, दे आर ओपनिंग ए वेयर हाउस. एक इन्वेस्टमेंट करने वाले दैट टू दे आर ओपनिंग ए वेयर हाउस इन्वेस्टमेंट इन ईस्ट जोन. तो वो उसका एक वेयर हाउस ओपन करने के लिए दे विल बी डूइंग अ केपेक्स ऑफ अराउंड 25 to 30 करोड़ का एक केपेक्स करने वाले हैं. थर्ड थिंग, वो डेट रिपेमेंट है. उनका जो डेट है अभी अराउंड 120 करोड़ का डेट है. सो दे आर सेइंग दैट कि देयर इज़ नो यूज़ ऑफ कीपिंग ए डेट ऑफ अराउंड 120 करोड़ जब आप QIP भी कर रहे हो 400 करोड़ का और वो प्रोसीड्स यूज़ भी नहीं कर रहे हो. सो व्हाट दे विल बी डूइंग इज़ दैट कि 400 करोड़ का जो QIP कर रहे हो उसमें से 120 करोड़ का डेट रीपे कर देंगे. सो दे विल बी ए नेट डेट फ्री कंपनी गोइंग अहेड. जब ये डेट रिपेमेंट हो जाएगा और ये QIP रेज हो जाएगा 400 करोड़ का, तब उसमें से 120 करोड़ विल बी फॉर डेट रिपेमेंट. सो अराउंड 280 करोड़ उनके पास बचेंगे जहाँ पे वो स्टोर एक्सपेंशंस का स्टोर के लिए एक स्टोर ओपन करने के लिए वो भी करेंगे, प्लस वेयर हाउस इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी करेंगे. कॉस्ट यूज़ करेंगे फॉर स्टोर एक्सपेंशन, फॉर वेयर हाउस इन्वेस्टमेंट्स. एंड थर्ड थिंग, वो वेंडर के लिए पेमेंट्स कर देना चाहते हैं सो दैट कि उनको बेटर प्राइसिंग मिले गोइंग अहेड. सो वो भी एक प्रोसीड जो करना चाहते हैं फ्रॉम दिस QIP ऑफ 400 करोड़. सो अगर इफ़ आई कंसोलिडेट एंड एक्सप्लेन अगेन वंस अगेन दैट वो लोग QIP करेंगे अराउंड 400 करोड़ का. ये QIP रेज होगा फॉर दी स्टोर एक्सपेंशन जो वो लोग करने वाले हैं, एडिशनल स्टोर एक्सपेंशन ऑफ अराउंड 50 to 60 स्टोर्स इन नेक्स्ट 2 years. Second, they are going to do a debt repayment of around 120 crores. They are opening a warehouse in the east zone. वहाँ पे वो लोग अराउंड 25 to 30 करोड़ का केपेक्स करेंगे. द फोर्थ थिंग इज़ दैट वो लोग वेंडर का प्राइसिंग बेटर करना चाहते हो, वो वेंडर को पेमेंट जल्दी कर देंगे सो दैट उनको बेटर प्राइसिंग मिले गोइंग है. सो दिस आर द 4 थिंग्स जहाँ पे इनका QIP का जो रेज्ड अमाउंट है 400 करोड़ वो यूटिलाइज हो. सो द नेक्स्ट पॉइंट है कि मैनेजमेंट ने ये भी एक्सप्लेन किया कि वेन एवर दे ओपन ए न्यू स्टोर
तो इट स्टार्ट्स विद जो न्यू स्टोर ओपन करते हैं वो अराउंड 800 रुपीज़ पर से स्क्वायर फीट होता है, स्क्वायर फीट होता है 800 रुपीज़। और जब वो स्टार्ट करते हैं ओपन ए न्यू स्टोर, और उसका जो न्यू स्टोर का जो ब्रेक इवन है दैट इज़ अराउंड ₹500। सो विद इन अ मंथ दैट द न्यू स्टोर इज़ ऑलरेडी प्रॉफिटेबल। सो दैट इज़ ऑल्सो एन एडवांटेज फॉर द कंपनी कि वो विद इन अ मंथ ही प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। बट जो उनका जो अगर कंपैरिजन हो अगर ओल्ड स्टोर से, दैट इज़ ऑलवेज 25% लोअर। 25% लोअर होता है। 30% उनका बेंचमार्क है। सो 25% लोअर होता है फ्रॉम द ओल्ड स्टोर अगर कंपेरिजन करेंगे तो। फॉर न्यू स्टोर्स द सेल्स पर स्क्वायर फीट इज़ 25% लोअर देन द ओल्ड स्टोर्स। दैट्स व्हाट मैनेजमेंट ने बोला कि ऑलवेज ये ऐसे ही होगा। थर्ड थिंग मैनेजमेंट ने बोला कि एक्सपेंशन का, कि दे आर एक्सपेंडिंग एग्रेसिवली बट दे डोंट वांट टू एट ऑल कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर ऑपरेशनल मैट्रिक्स जो एबिटा है, कैश फ्लोज है, दे डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज। सो व्हाट दे हैव डन इज दैट दे हैव सेट अ बेंचमार्क विच इज़ 30%, 30% लोअर जब न्यू स्टोर्स जाएगा कंपेयर टू ओल्ड स्टोर। सो इसका मतलब क्या हुआ, इफ़ आई सेट एक्सप्लेन यू इन एन एग्जाम्पल दैट ओल्ड स्टोर्स जो है अगर वो अर्न कर रहे हैं अराउंड 100 रुपीज़, ओल्ड स्टोर से अगर मैनेज कंपनी अर्न कर रही है अराउंड 100 रुपीज़, और अगर न्यू स्टोर से दे आर अर्निंग अराउंड 70 रुपीज़ और 75 रुपीज़, एंड दैट डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड स्टोर एंड द न्यू स्टोर इज़ अराउंड 25 to 30%, देन इट्स ओके फॉर द मैनेजमेंट। वो और एक्सपेंड कर सकती है, नेक्स्ट फेज ऑफ एक्सपेंशन में जा सकती है अगर ये 25 to 30% है। बट द मोमेंट द मैनेजमेंट सीज कि जब ओल्ड स्टोर से दे आर अर्निंग 100, न्यू स्टोर से दे आर अर्निंग अराउंड 50 रुपीज़, दे हैव स्टार्टेड अर्निंग अराउंड 50 रुपीज़ to 60 रुपीज़, at that point only they will stop their expansion phase. They will cancel or postpone that expansion phase and they will again focus on their cash flows and all. जो स्टोर यूनिट इकोनॉमिक्स है उस पर भी फोकस करेंगे वो लोग एक्सपेंशन जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते अपने कैश फ्लोज के साथ या ऑपरेशनल मैट्रिक्स के साथ while they are growing at a faster pace. So that compromises, they don't want to compromise on those stuffs. They want to focus on growth as well as on the operational metrics as well. They want this to go in hand to hand. अगर जहाँ पे उनको लगा कि operational metrics impact हो रहा है या न्यू स्टोर का जो सेल्स पर स्क्वायर फीट है वो 30% से लोअर हो गया, 40% हो गया, 50% दैट रेशियो कंपेयर टू ओल्ड स्टोर ज़्यादा हो रहा है, then they will start stopping that expansion और वो पोस्टपोन करेंगे. सो अगेन दैट्स अ गुड साइन कि मैनेजमेंट को पता है कि कहाँ पे उनको एक्सपेंशन स्टॉप करना है, कहाँ पे उनको एग्रेसिवली जाना है. एंड डेफिनेटली दे हैव सेड ऑल्सो दैट कि दे आर नॉट ब्लाइंडली चेजिंग द ग्रोथ. यस, डेफिनेटली ग्रोथ इज़ नेसेसरी. एक कंपनी चाहिए ग्रोथ होना चाहिए, स्टोर्स एक्सपेंशन होना चाहिए, but the operational metrics should not get affected also. That should also be intact, and V2 management knows that, and that's how they are executing it so well. So that's what management said in the Q1FY26 Concall में कि first point was that कि they are doing a QIP of around 400 crores. Then न्यू स्टोर जब ओपन होता है तो वो स्ट्रेट अवे इन ए मंथ दे आर प्रॉफिटेबल. They are profitable as the sales per square feet is around 800 rupees when they open a new store, and the break even for them is around 500. So that's also a good sign. Third is that they are just not chasing the growth blindly. They are focusing on cash flows and operational metrics as well. कि जिसकी वजह से they have set a benchmark that the sales per square feet should not go below 30%. वो डिफरेंस जो है वो कम नहीं होना चाहिए बिटवीन ओल्ड स्टोर एंड द न्यू स्टोर. सो दैट्स व्हाट मैनेजमेंट इज सेड. So this was, if we see the growth guidance as well, मैनेजमेंट ने गाइड क्या किया है फॉर द रेस्ट ऑफ FY26. रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे तो अराउंड 50% का ग्रोथ गाइडेंस किया है. लास्ट क्वार्टर पे अगर आप देखोगे मैनेजमेंट का कॉल सुनोगे तो उसमें उन्होंने बोला था कि Q4 FY25 FY26 में दे विल बी ग्रोइंग इन द रेंज ऑफ 45 to 50%. बट दिस टाइम दे हैव पिन पॉइंट एकदम एग्जैक्ट परसेंटेज बताया कि 50% से हम लोग FY26 में ग्रो करेंगे. और ऐसा उन्होंने पहले भी बोला है कि अगर जैसा डिमांड है एप्पल सेक्टर में, जैसा ट्रैक्शन उनको मिल रहा है, दे आर डेफिनेटली फॉर द नेक्स्ट 10 years वो लोग ऐसे ग्रो कर सकते हैं इन दैट एट दिस पेस से, इस पेस से वो ग्रो कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट 8 to 10 years ऑल्सो. That's what how the management is confident about it. Secondly, EBITDA margins will be around 8 to 10% का EBITDA margins रहेगा. PAT margins का उन्होंने guidance दिया है which is will be around 4 to 5% का PAT margins है. और जो stores expansion है, they have said that कि
around 100 stores or 100 stores is FY26 में they are going to open. In FY27 also they will be going to open on 120-130 stores. और जो एक्सपेंशन का जो केपेक्स है इट विल बी इंटरनल अक्रूवल्स प्लस इट विल बी अराउंड QIP एज वेल, जो वो लोग अराउंड 400 करोड़ का करने वाले हैं. सो दिस इज़ व्हाट द गाइडेंस दे हैव गिवन टू मैनेजमेंट. प्लस उन्होंने ये भी बोला है कि अराउंड 75% जो स्टोर्स है वो अपने एग्जिस्टिंग रीजन्स में करेंगे, जैसे बिहार हो गया. They are going to open around 75% stores in existing states, and around 25% का जो remaining है they are going to open in new states as well. And they have also guided that कि previous quarter में guidance दिया था कि वो लोग pan India जाना चाहते हैं and they want to expand to expand pan India and in next 2 to 3 years. So that's how the aspiration is, and that's how the guidance is, and I'm sure that they will be able to definitely execute it. So that's why we need to continuously track companies every quarter and listen to the management commentary as well. एक छोटा सा अगर हम लोग वैल्यूएशन भी कर रहे हैं कि फॉरवर्ड पी क्या बन सकता है, अगर इस स्टेज में भी अगर हम लोग देखते हैं कि रेवेन्यू जो था FY25 में, दे एंडेड FY25 विद रेवेन्यू ऑफ अराउंड 800 करोड़ का रेवेन्यू था. FY26 दे वांट टू डू अ रेवेन्यू ऑफ अराउंड 50%. सो अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो इट विल बी अराउंड 2800 करोड़ का उनका रेवेन्यू होगा इन FY26. दे हैव गाइडेड फॉर ए पैट मार्जिन ऑफ अराउंड 4 to 5%. अगर हम लोग हायर एंड भी लेते हैं 5% का पैट मार्जिन, दैट इक्वल्स टू अ पैट ऑफ अराउंड 141 करोड़ इन FY26 जो पैट होगा उनका. अगर मार्केट कैप देखते हैं V2 में का, इट इज़ अराउंड 6100 to 6100 to 6200 करोड़ का मार्केट कैप है. तो अगर बेस को ही लेके चले तो फॉरवर्ड पी इज़ अराउंड 43-42 का फॉरवर्ड पी आता है अगर 5% पैट मार्जिन के हिसाब से करते हैं. सो अगेन इट्स अ गुड डील आई वुड से. जैसे वो ग्रो कर रहे हैं, the pace they are growing around 40-44 P is a good, I would say that, क्योंकि जब ट्रेंड ग्रो कर रहा था अराउंड 60-80% से, दैट टाइम दैट PE was around 120-130-140 का PE था. नाउ दैट पेस ऑफ ग्रोथ इज ऑल्सो कम डाउन एंड दैट PE रेटिंग is also happening. बट here I would say that deal is not bad 43-44 का, बट हम लोग को कंटिन्यूसली ट्रैक करते रहना पड़ेगा. अगेन ग्रोथ वाइज देखते रहना पड़ेगा एवरी क्वार्टर. एक बायसनेस में नहीं आ सकती ये करेगा ही करेगा. वी हैव टू ट्रैक दिस कंपनीज. V2 लिमिट हो गया, स्टाइल बाज़ार हो गया, ट्रेंड हो गया, तो कंटिन्यूसली ट्रैक एंड सी कहाँ पे हम लोग का बिल्डअप बन रहा है. सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ V2 लिमिटेड. आई एम पोस्टिंग इट अगेन. आई एम रियली सॉरी कि लास्ट कॉल पे आप लोग को ठीक से ऑडियो नहीं आया. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, but I hope that this time it is perfect and you guys will be able to listen to complete video, and audio is also correct. I have re-recorded this video, so yeah, I hope that it turn out so be good, and thank you so much. Keep on supporting, and yeah, have a great day.